Hello friends, today the discussion topic is the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Firstly, we discuss the variation of conductivity concentration. Variation of conductivity with concentration. What is conductivity or specific conductance? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube solution of electrolyte. Means if we take 1 centimeter cube solution of electrolyte, means this is a container and having length, breadth, height 1 centimeter, length, breadth, height is equal to 1 centimeter, then its volume become 1 centimeter cube. This is 1 centimeter cube and the solution filled in this cube is 1 centimeter cube, means value is equal to 1 centimeter cube. This is electrolyte. If we calculate the conductance of this 1 centimeter cube of electrolyte, then this is called conductivity. When we dilute, when we add water, means on dilution or decreased concentration both are similar terms. मीन्स अगर हम पानी को ऐड कर रहे हैं या कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, एक ही बात है. When we add water in this solution, then what happened? जो आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट थे वो दूर दूर हो जाएंगे. मीन्स मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम दिस. It means the number of ions present in 1 centimeter cube become decreases, right? Let's again. What is conductivity? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of electrolyte. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ने और उसका जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी करेगा. If we add the water, if we dilute the electrolyte, then the number of ions present in 1 centimeter cube become decreases. Why? Because molecules दूर दूर हैं. अगर हम water ऐड करेंगे तो molecules दूर दूर हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो आयंस होंगे उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, because they are moved apart from each other. Means the number of ions present in 1 centimeter cube become decreases. तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो जाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, उनकी कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. मींस if we dilute the electrolyte, then its conductivity become decreases. Means conductivity is inversely proportional to 1 upon dilution.
1 upon dilution. Let's again, if we dilute the solution, if we add the water, means the ions present in 1 centimeter cube become decreases because on adding water they move apart and 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस के नंबर होंगे उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. मींस ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी बिकम डिक्रीजेस. क्लियर? नाउ molar conductivity with concentration. Molar conductivity with concentration. Molar conductivity with concentration. What is molar conductivity? The conductivity of 1 mole of electrolyte. The conductivity of 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. What is molar conductivity? It is the conductivity of 1 mole of electrolyte. This is called molar conductivity. How? The molar conductivity depends on concentration. As you know, electrolyte is of 2 types. First one is the weak electrolyte and second one is the strong electrolyte. One by one we discuss about the variation of molar conductivity of weak electrolyte with concentration. Okay. Weak electrolyte, as you know, if you take example the weak electrolyte, then that is acetic acid. वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होती, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, राइट? तो सो दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? दे आर completely dissociated, which we discussed later. First we discuss about the weak electrolyte. Weak electrolyte are those substances which are not completely dissociated, not completely dissociated, right? If we dilute the solution, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर को ऐड करने पर मींस डाइल्यूट कर रहे हैं सोल्यूशन को, मींस कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कंसंट्रेशन. तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. मींस when we dilute the solution, then the weak electrolyte become more ionized, and when the weak electrolyte become more ionized, then they produces large number of ions. They produces large number of ions. और you know, अगर आयंस के नंबर बढ़ गए तो वो मूव करेंगे और उनके मूव करने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, मींस कंडक्टिविटी बढ़ेगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करते जाएंगे तो उनके जो डिसोसिएशन वो इंक्रीज कर जाएगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे और बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को मूव करेंगे एंड दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी. अगर हम डाइल्यूट करते जाए तो मींस एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें मॉलिक्यूल्स 100% डिसोसिएट हो जाएगा और उस टाइम पर जो कंडक्टिविटी होगी वही कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी. मींस दैट डाइल्यूशन इज कॉल्ड इनफिनाइट डाइल्यूशन. मीन जिस कंडीशन पर मॉलिक्यूल्स पूरा डिसोसिएट हो जाए उस डाइल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन. व्हाट इज इनफिनाइट डाइल्यूशन?
when we add the water or dilute the weak electrolyte solution, then the ions are completely dissociate or 100% ionized. That dilution is said to be infinite dilution. At infinite dilution, all the weak electrolyte molecules are completely dissociated, and at that time their conductivity increases. Means conductivity is directly proportional to dilution. Means in case of weak electrolyte, if we increase the dilution, means decrease the concentration, then their conductivity also increases. What is reason? Reason is that अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आर गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड. डाइल्यूट करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते जाएंगे और एक कंडीशन ऐसी पहुंच जाएगी जहां पर मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस करेगा और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस करेगा तो देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी. एंड at infinite dilution 100% dissociation occur, and at that time the conductivity is called limiting conductivity. Now the strong electrolyte, in case of strong electrolyte, as you know, the strong electrolyte are those molecules means 100% dissociation. If we dilute the solution means अगर हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो मॉलिक्यूल्स आर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और उनकी यहां पर क्राउडनेस ज्यादा है, लेकिन जब डाइल्यूट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे. दे आर मूव far apart to each other and the speed of ions become increases. और उनकी स्पीड बढ़ जाने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी. लेकिन one more thing is very important. Remember that the conductivity of a strong electrolyte is not increases as higher as compared to the weak electrolyte. मीन जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नहीं बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पहले से 100% डिसोसिएट हो चुके हैं. हम डाइल्यूट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो क्राउडनेस थी वो कम हो गई है और मॉलिक्यूल्स दूर हो गए हैं और आराम से वो मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री है टू फॉर मूविंग. और इनकी वजह से इनका जो कंडक्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी. मतलब कंडक्टिविटी is directly proportional to dilution. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? लेट्स अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करेंगे, मॉलिक्यूल डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, उनके नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी. और हम जब डाइल्यूशन खूब कर देंगे, जब 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे इनफिनाइट डाइल्यूशन. और इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोलेंगे लिमिटेड कंडक्टिविटी. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरीके से पहले डिसोसिएट हो चुका है, जब आप डाइल्यूट करोगे तो जो क्राउडनेस है मॉलिक्यूल्स की, जो आयंस की, वो कम हो जाएगी. क्योंकि जब क्राउडनेस कम होगी तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी और उनकी स्पीड बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. मतलब डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी. अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन को कम करना. अगर हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी इस तरीके से। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस ग्राफ से देख सकते हैं आप कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हल्का सा इसमें स्लोप है। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स पहले से 100% डिसोसिएट हो चुके हैं, केवल डाइल्यूशन बढ़ाने से उनकी स्पीड बढ़ जा रही है, इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रही जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फैक्टर है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर क्या है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है आयंस का। दोनों ही केस में कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा बढ़ रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% डिसोसिएशन पहले ही हो चुका है, और when we add the water then the crowdness of that ions become decreases and the molecules or ions are move far apart to each other and their conductivity increases. So these are the topics related with the concentration. Thank you very much.